بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر فائرنگ ہوئی ہے. ٹریک پہ دھماکہ کیا، پھر فائرنگ کی. عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے، مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. آج ہم جو دو اہم ٹاپک ہیں جو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ جن پہ بحث ہو رہی ہے، جن پہ بات ہو رہی ہے. ابھی تو ایک ریسنٹلی جو ایک حادثہ ہوا ہے بلوچستان میں سے، جو ٹرین حادثہ ہے جسے کہا جائے گا، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا. جس میں تقریباً 26 کے قریب بے گناہ جو سیویلین ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس میں 33 جو دہشت گرد ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ بلوچستان میں ہوتے رہے، جیسے بسوں سے اتار کر لوگوں کو شناخت کر کے وہ عام سیویلین ہیں، مزدور جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے بلوچستان جاتے ہیں، انہیں ہلاک کیا جاتا رہا ہے. بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں، جس میں BLA ہے اور دوسری تنظیمیں ہیں، مجید بریگیڈ وغیرہ، وہ لیتے رہے. تو پہلے بھی اس پہ جو ہے بڑی شدید تشویش ہوتی رہی ہے اور جو پاکستان کے جو محب وطن حلقے ہیں ان کو، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے حادثہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک بہت بڑا حادثہ کرتے ہیں، ایک پوری ٹرین ہے اس کو اغوا کرتے ہیں. تو اس میں بے تحاشا جو ہے عام لوگوں کو جو ہلاک کر کے، تو اس طریقے سے ان کا مقصد تھا کہ ہم ایک پوری دنیا میں جو ہے اس کی توجہ جو ہے وہ حاصل کریں گے. تو اس طرح وہ توجہ تو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ان کے خود اپنے لیے جو ہے وہ نقصان دہ عمل ثابت ہو رہا ہے. پہلے ہمارے شیل پھینکے گئے ہیں ٹرین کے اوپر، اس کے بعد ہم پہ پھر فائرنگ کی گئی ہے. اب انہوں نے ہمیں نکالا ہے، اندر ٹرین سے اتارا ہے، ان کو بولا ہے کہ الگ الگ ہو جاؤ. سرائکی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، یہ سب الگ الگ ہو جائے. اچانک ہی بلاسٹ ہوا نیچے، تو ٹرین پٹری سے اتر گئی. اچانک ہی کچھ لوگ آگے، ان کے پاس لانچر بھی تھے، اس کے بعد کافی چیزیں تھیں، گنے وغیرہ تھی. فائرنگ شروع کر دی، یہ نہیں ہوائی فائرنگ، ڈائریکٹ اندر. تو پھر یہی بولتے رہے کہ باہر آ جاؤ، جو باہر نہیں آئے گا ہم اس کو مار دیں گے. کیونکہ جس طرح اقوام متحدہ ہے، اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے اس واقعے کی جو ہے مذمت کی ہے. جو سیکیورٹی کونسل ہے اس نے اس جو واقعے کی شدید مذمت کی. OIC نے کی، اسی طرح امریکہ، فرانس، جرمنی، ان تمام ملکوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے، اور اس کی جو ہے ایک طرح کی سرکوبی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جائے. تو یہ جو ہے ایک الٹی چال جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے ثابت ہو رہی ہے. تو اس میں چاہیے ہمارے جو گورنمنٹ ہے، جو محکمہ خارجہ ہے، وہ اس وقت جو ہے ان تمام ملکوں کا جو ہے ایک ان سے فائدہ حاصل کرے، اور ان کے خلاف جو ہے اگر کوئی ایکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان ممالک کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی. تو اس طریقے سے کارروائی کرنا، کوئی بھی جسے اگر اس سے پہلے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو ہمارے جو لوکل یہاں کے پاکستان کے جو ہے جنہیں کہا جاتا ہے جی انٹلیکچوئلز، اور اس میں صحافی حضرات بھی شامل ہے، تجزیہ کار، سیاستدان، اور جو ہے سیویلینز، وہ ایک طرح کا ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے لیے وہ پیدا کر دیتے ہیں. انہیں یہ کہہ کر کہ یہ ناراض لوگ ہیں اور یہ جو ہیں اپنے ہی لوگ ہیں، تو ان سے مذاکرات کی جائیں، ان سے بات چیت کی جائے. تو اب یہ ہے کہ اگر سامنے والا فرد جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی سلوشن کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور اسی طرح وہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے لیے وبال جان بنا رہے،
تو پھر آخر کار تو مذاکرات جو ہیں وہ پھر بےمعنی ہو جاتے ہیں. تو ہر جگہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ اگر مذاکرات سے مسئلہ کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی سرکش گروپ یا کوئی باغی گروپ، تو آخر کار انتہا کار پھر ایک کارروائی کی جاتی ہے، جسے جو ہے عسکری کارروائی کر کے ان کو پھر کمزور کیا جاتا ہے. کمزور کرنے کے بعد جو ہے پھر مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو یہاں پر پاکستان میں جو سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہیں، خاص کر ان گروپوں کے لیے یا نادانشتہ ہیں وہ جو ہے انسانی حقوق کی جو ہے ایک طرح کا وہ شیلٹر دے کر تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ہی سافٹ کارنر جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آج کا بھی نہیں ہے، یہ شروع سے اگر ہم سن 1948 سے دیکھیں تو یہ بلوچستان میں اس طرح کی متواتر جو ہے بغاوتیں وہ سر اٹھاتی رہتی ہیں ان کے لوکل سرداروں کی پشت پناہی پر. سب سے پہلے جو بغاوت بلوچستان میں جو ہوئی ہے وہ سن 1948 میں ہوئی ہے. اس ٹائم بھی اسی طرح کا مسلح جو ہے گروہ وہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے تھے، جن پہ وہ کارروائی کی گئی، وہ جو بغاوت ہے اس کو دبایا گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ 57-58 میں اسی طرح کی جو ہے بغاوت دوبارہ کی گئی. پھر جو ہے 1962-63 میں اسی طرح کی بغاوت جو ہے اس نے سر اٹھایا. تو اس میں جو 62-63 کی ہے، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان جو صدر تھے وہ کوئٹہ کا دورہ کرنے گئے تھے تو انہیں ایک طرح سے اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ان پہ حملہ بھی کیا گیا. اس کے بعد اسی طرح کا دوبارہ جو ہے یہ بغاوت سرکشی جو ہے 1973-74 میں ہوئی، جب ذوالفقار علی بھٹو کوئٹہ کا دورہ کرنے گئے تو ان پہ جو ہے ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا نام ایک شخص نے کی جس کا نام مجید تھا. تو وہ جو ہے وہ بھی ناکام ہوا. تو اس کے بعد بھی جو ہے فوجی کارروائی کا آغاز ہوا وہاں پر. اس طرح کی یہ متواتر جو ہے یہ جو ہے بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ 62 میں 63 73 یا 48 میں اگر ایک فوجی کارروائی ہوتی رہی ہے تو وہ فوجی اور کارروائی ہونے کے بعد جو ہے پھر کوئی 10-15 سال جو ہے وہ ایک وقفہ آتا رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ابھی جو ہے 2003 اور 4 میں جو یہ 5ویں دفعہ جو سرکشی ہوئی ہے پرویز مشرف کے دور میں، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل جو ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہے. یہ آج 2025 ہے تو تقریباً 20 سال کے عرصے 22 سال تک یہ مسلسل جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا اسباب ہیں؟ اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو جو ہمارے جو حضرات ہیں سیویلینز جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر بے روزگاری ہے، وسائل کی تقسیم نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ بلوچ حضرات جو ناراض ہے، جو اینٹی اسٹیٹ جو چلے گئے ہیں، ان کو یہ موقع ملتا ہے. تو اگر یہ حساب دیکھا جائے تو اس طرح کے حالات جو ہے میرے خیال میں جو پاکستان کا بڑے سے بڑا شہر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا شہر ہو، تو ہر جگہ اس طرح کے حالات موجود ہیں. خاص کر آپ اگر بڑا شہر کراچی دیکھ لیں، آپ کراچی، لاہور، وہاں پر بھی آپ کو بے روزگاری ملے گی. اسی طرح سندھ کے انٹیریئر دیہات ہیں یا چولستان کا علاقہ ہے. اسی طرح KPK کے اندر پشاور میں بھی اسی طرح حالات ہیں، اور اس کے جو دوسرے ایریاز ہیں. تو ہر جگہ یہ حالات تو موجود ہیں. بے روزگاری بھی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، وسائل کی تقسیم نہیں ہے. لیکن اس وجہ کو جو ہے ایک وجہ بنا کر کسی بھی انسان کا خون بہانا، ایک قطرہ بھی خون بہانا، یہ نہ تو مذہب میں جائز ہے، نہ ہی کسی دنیا کے کسی قانون میں، نہ دنیا کے کسی آئین میں. تو محض اس بنا پر کہ بھئی ہمیں روزگار نہیں مل رہا یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم انسانی خون بہائیں گے، تو یہ تو سراسر جو ہے ایک ظلم والی بات ہے، ناانصافی والی بات ہے. اور نہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، نہ دین سے، نہ دنیا سے. اگر ہم دیکھیں ہمارے جو قانون ہے تعزیر پاکستان، اس میں بھی اگر آپ ایک جانور کو بھی اگر آپ جو ہے اس پر بھی ظلم زیادتی کرتے ہیں یا اس پر تشدد کرتے ہیں، تشدد کر کے یا اسے بلا وجہ جو ہے ہلاک کرتے ہیں، تو اس پر بھی آپ کے اوپر ایک FIR کٹتی ہے. اور اس FIR کی سزا جو ہے وہ 3 مہینے
जेल की सज़ा, फाइन, पेनल्टी वो इसके अलावा है। तो मतलब कुत्ता बिल्ला भी मारना जो है बिला वजह, वो भी एक जुर्म है ताज़ीर पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर तो जीते जागते जो इंसान हैं उन्हें जो है कत्ल कर दिया जाता है बेगुनाह। इसमें जो है फोर्सेस के लोग भी शामिल होते हैं, जो आज से नहीं है, 2003 और 4 से उनका मुसलसल कत्लेआम हो रहा है। और इसमें यह है, हैरतनाक बात यह है कि ये 2003 से जो ये बगावत शुरू हुई है, तो उसके अंदर जो है जो सरदार हजरात हैं वो ख़ुद इन हलाकतों की ज़िम्मेदारी कबूल करते रहे कि ये हमारी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने, हमारे लोगों ने ये जो रॉकेट चलाए हैं, ये हलाकतें जो की हैं उन्होंने की हैं या हमने की। तो इस तरह जो है ये इस तरह करके ये बिला वजह पाकिस्तान में एक तरह का कमज़ोर करने का जो मंसूबा है, इसके पीछे जो है बहुत अरसे से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं अफ़गानिस्तान और भारत, इंडिया, ये मुसलसल जो है इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो है वो पनाहगाहें इन तमाम दहशतगर्दों की, TTP और भी दूसरे, और उनको वसाइल, टेक्नोलॉजी और प्रोपेगेंडा जो टूल मशीनरी है वो इंडिया फराहम कर रहा है। तो इंडिया जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान में हर तामीरी जो मंसूबा है उसको वो जो है डिमोलिश करने के लिए प्रोपेगेंडा भी करता है, या यहाँ पे जो उसके लोकल जो लोग हैं जो उसके लिए सहूलतकार बनते हैं उन्हें माली मदद भी देता है और उनसे वो काम भी करवाता है। अभी जो CPAC है उसको नाकाम करना चाह रहा है इंडिया। इसके अलावा अगर कोई दूसरे मंसूबे होते हैं जो ऐसे पैदावारी हों, उनके ख़िलाफ़ भी वो, जिस तरह कालाबाग डैम है उसके ख़िलाफ़ भी वो शुरू से इसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है इंडिया। तो इस तरीके से चलते हुए वो दुश्मनी का मुकम्मल जो है वो सबूत दे रहे हैं। तो अब ये है कि हमारे यहाँ के जो लोकल जो मीडिया ग्रुप है, मीडिया के हजरात हैं, उन्हें भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये महज एक नाराज़ लोगों का मुतालबा नहीं होना चाहिए कि हमने इंसानी खून बहाना है और इंसानी जानें लेनी है। ये एक कोई शुगल नहीं है, कोई खेल नहीं है। किसी की बेगुनाह की बिला वजह जान लेना एक इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है। तो ये मालूम नहीं हमारे मीडिया पर्सन्स, एंकर हजरात जो हैं ये इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे, और अब भी वो मुज़ाकरात के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर दे के उनकी एक तरह की हौसला अफजाई की जाती है, उनकी पुष्टपनाही किए जाने के मुतरादिफ है ये बात। तो इस तरह से ये हालात बिला वजह ख़राब करना खुद अपने पाकिस्तान के लिए जो है, आगे CPAC के लिए, गवादर की तरक्की के लिए, ये एक तरह का एक ब्लॉकेड है जो जिसमें अभी तक तो कामयाब नज़र आ रहे हैं दुश्मन ममालिक भी, तमाम जो दूसरे ग्रुप हैं वो। इसके अलावा जो दूसरा एक अहम टॉपिक है आजकल, जो सूबों के माबैन जो है पानी का मसला तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें भी जो है कुछ ऐसे ही नज़र आता है कि यही फोर्सेस जो है ये जो दुश्मन ममालिक की है, ये आज से नहीं बहुत अरसे से जो है, ख़ासकर जो एक कालाबाग डैम है, अब तो वो एक तरह का समझें कालाबाग डैम एक क्या बोले उसको, एक गाली सी बन गया है कि उसको यही समझा जाता है कि ये एक बहुत जो है जुल्म का और कोई नाइंसाफ़ी का एक मंसूबा है। तो इसमें यह है कि अगर हम एक नज़र जो है फैक्ट पर, हकीकत पर डालें, तो थोड़ा जो है इसको तफसील से थोड़ी बहुत तफसील से इसको देख लें कि कालाबाग डैम, अव्वल तो इसका ये था कालाबाग डैम का नाम भी अब जो है तब्दील कर देना चाहिए था, कोई दूसरा नाम रख लेना चाहिए था। ये मंसूबा जो है जिस तरह बताया गया है कि ये मुसलसल जो है ये एक इस्तेसाली मंसूबा है, खासकर हमारे जो सिंधी भाई हैं उनके लिए। तो इसकी अगर हम एक तारीख़ी तौर पर अगर पस मंज़र हम देखें कि हमारे सूबा सिंध में जो है तमाम जो ज़राअत है, पानी का जो है वो पानी नहरी पानी से होती है, क्योंकि सूबा सिंध में ज़ेर ज़मीन जो है इतना पानी नहीं है कि वो काश्तकारी के लिए पूरा हो सके। ना ही इतनी बारिशें होती हैं कि बारिशों से जो है वो ज़राअत मुकम्मल हो जाए। तो तमाम का तमाम इन्हिसार पानी मतलब नहरों पे होता है। इसी तरह पंजाब में भी है। पंजाब में ये है कि कुछ इलाकों में जो है वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी वाफिर मकदार में मौजूद है, उसके अलावा बारिशें भी हो जाती हैं, तो उनसे वो जो है ज़राअत मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे नहरी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो डैम का है, तो डैम बनाने के लिए अभी हमारे पाकिस्तान में ऐसा इशू बना दिया गया है कि जैसे ये एक बहुत जो है तबाही का मंसूबा है।
अगर हम दुनिया की जो तमाम बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन पे हम नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त चाइना में 98,000 डैम जो है चाइना अब तक बना चुका है। 2000 रह गए हैं, 2000 उसने और बना लिए तो मुकम्मल 1 लाख हो जाए। अमेरिका में 93,000 डैम बन चुके हैं और भारत में 5,757 डैम बन चुके हैं, अभी मज़ीद अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि पाकिस्तान में कुल 150 डैम है। तो अब ये डैम जो है, डैम इस तरह बनाए जाते हैं जिस तरह घर में एक टैंक बनाया जाता है कि भाई टैंक में पानी स्टोर करके आप 10-15 दिन तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह जो मुल्क है उन्होंने बड़े बड़े ज़राअत के लिए वो डैम एक टैंक के तौर पर बना लेते हैं। बनाने के बाद वो उस टैंक से साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने तक पानी को इस्तेमाल ज़राअत के लिए किया जा सकता है, पीने के लिए भी किया जा सकता है। तो अभी भी जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है, जो स्टोरेज, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, वो महज 2 महीने की है, जबकि चाइना की 1 साल है, अमेरिका की 3 साल तक है। तो अब ये जो डैम से पानी आता है ये नहरों में मुसलसल 1 साल तक मुतवातिर आ सकता है। अगर ये डैम ना हो तो जो बारिशें होती हैं, अगर बारिश हुई है हफ्ते 10 दिन के लिए तो हफ्ते 10 दिन के लिए आपको पानी मैसर आएगा, उसके बाद आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो डैम बनाकर ये जो है स्टोरेज पानी करके पूरे साल जो है वो पानी हम ज़राअत के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल उस तरीके से वो करते हैं। तो अब इस पर भी जो है शुरू में ये 1984 के अंदर ये मसला जो है, जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे साहब का फजल हक, उन्होंने उठाया कि इससे जो है नौशहरा जो शहर है ये डूब जाएगा। तो उसमें ANP जो है वली खान वगैरह ग्रुप, उन्होंने भी उसकी भरपूर मुखालफत की। बाद में वो उसका साइज़ जो है वो कम कर दिया गया, नौशहरा का डूबने का ख़तरा भी ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो है जो हमारे जो कौमी लेवल के सियासतदान हैं उन्होंने इसका जो एक फैक्चुअल जवाब था, जो फैक्ट पर मबनी था, जो इसमें हकीकत बताई जाती कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या होना है, इससे फ़ायदा किस किस को है, और इसका होने से फ़ायदा सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सूबा सिंध को है, जहाँ पर 32 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो आबाद नहीं होगी। इससे ज़्यादा पानी जो है वो सूबा सिंध को मिलेगा। पंजाब में 14 लाख एकड़ ज़मीन आबाद हो, इस तरह बलूचिस्तान और सरहद में 9 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो नहीं आबाद हो। लेकिन इसको इस तरीके से उलझाया गया क्योंकि वो जो कौमी लेवल के सियासतदान हैं, ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, उन्होंने उस सच्चाई बयान करने की इस तरफ कोई कोशिश ही नहीं की, या उनको शायद मालूम नहीं था या उन्होंने कोशिश भी नहीं की एक सियासी मसलियत के तौर पर। और इसके अलावा जो दीगर सियासी पार्टियाँ थीं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू में ये मसला जो है कौम परस्त सियासतदान है उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और इस पर सियासत करना शुरू की। बाद में देखते देखते बड़ी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने भी इसको एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खासकर इसमें पीपल्स पार्टी का नाम भी आएगा। और जिन्होंने इसको सही तरीके से बयान नहीं किया उसमें मुस्लिम लीग नून का नाम आएगा कि उन्होंने कभी इस पर खुलकर बात करने की कोशिश नहीं की। तो अब इस तरह बढ़ते बढ़ते अब ये सूबे के दरमियान मसला पैदा हो गया है। तो अभी भी ये जो कहा जा रहा है कि ये जो है मनसूबे, ये नहरें, इसमें सिंध में भी 2 नहरें निकलेंगी मुस्तकबिल में जाकर। तो ये जो नहरें निकल रही हैं ये जो जून से लेकर अक्टूबर तक बारिशें होती हैं पाकिस्तान में, और बाज़ औक़ात जो है बेतहाशा सैलाब भी आ जाते हैं। तो ये सैलाबी जो सिचुएशन है, पानी है और जो बारिशों का पानी है, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए नई ज़मीनें जो है आबाद करना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे चल कर पाकिस्तान को आबादी हर साल पाकिस्तान की 50 लाख बढ़ रही है। तो जो पाकिस्तान है इसको ग़िज़ाई किल्लत का भी ख़दशा है, पानी की किल्लत भी और ग़िज़ाई किल्लत की भी। अगर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई तो आपको गंदम, चावल, मकई, ये तमाम चीज़ें फिर बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, जो मज़ीद महंगाई का सबब बनेंगी। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये एक कौमी सानिया ही बनेगा कि भाई हर चीज़ ज़रई मुल्क होने के बावजूद आप बाहर से मंगाएंगे, आपका ज़र मुबादला ख़र्च होगा, ज़ाया होगा। तो ये जो है इनका है मकसद कि इसको हम जो ज़ाया होने वाला पानी है, क्योंकि सूबा सिंध का जो डाउन स्ट्रीम है, ये परवेज़ मुशर्रफ ने 2004-05 में जो बैनुल अक़वामी इंजीनियर है उनकी कौंसल को यहाँ बुलवा के उनसे एक तखमीना लगाया था कि दरियाए सिंध का जो डाउन स्ट्रीम है, ठट्टा के इलाका जो डाउन स्ट्रीम है समंदर का, इसको कितने जो मिलियन एकड़ फीट पानी की ज़रूरत है साल की। तो उन्होंने 7 लाख मिलियन एकड़ फीट का तस्करा किया। लेकिन अभी जो बारिशों का सीज़न है और सैलाबी सीज़न में
जो समुद्र में गिरकर पानी ज़ाया हो जाता है वो 30 मिलियन से लेकर 40 मिलियन भी चला जाता है अगर सैलाब ज़्यादा हो। तो इस तरीके से आप कई 1 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो समुद्र में गिरकर ज़ाया कर देते हैं। और ये रिकॉर्ड जो है, इसके अलावा जो नदी नालों से बलूचिस्तान के, सिंध के जो पानी समुद्र में गिरता है, ये उस रिकॉर्ड के अलावा है। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर एक कौमी मंसूबा है कि ये नहरें बनाकर बाद में सुबह जो सिंध की गवर्नमेंट है उसको भी ये तकाजा करना चाहिए कि ये नहरें जो है ये सिंध में भी बनाई जाए। अगर 6 वहाँ बन रही हैं तो 6 यहाँ भी बनाएं, क्योंकि पानी सिंध का भी वो हिस्से का है। सबसे ज़्यादा पानी सिंध को मिलता है, जो टोटल पानी नहरी पानी है, पंजाब का सिंध से कम है। तो बजाय वो वहाँ गिराने के 7 मिलियन आप गिराएं, बाकी जो है वो वहाँ पर नहरें बनाएं, सिंध में भी नहरें बनाएं, वहाँ पर भी बनाएं, ताकि जो गैर आबाद ज़मीन पड़ी है, रेगिस्तान, वो आबाद हों, वहाँ से आपको आमदनी स्टेट को मिले, उससे जो है आप एक्सपोर्ट भी बढ़े, ज़र मुबादला जो है वो तमाम चीज़ें जो है आपकी जो है एक सेटलमेंट में आए, बजाय इसके कि इस पर कन्फ्यूजन पैदा की जाए। अभी भी जो है जिस तरह जो डैम है, डैम के इश्यूज़ पर जो कौमी लेवल की पार्टियां हैं उन्होंने लबकुशाई नहीं की, और अभी 70 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली प्राइवेट कंपनियों से आप ख़रीद रहे हैं, जबकि डैम से यही बिजली 3 से 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलती है। और इसी तरह अमेरिका, चाइना, इंडिया सस्ती बिजली बना के अपनी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दे रहे हैं और सस्ती प्रोडक्ट बना के उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, उधर वो 4 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं, ये कौमी लेवल की पार्टियां जो हैं इसको टैकल नहीं करती, और इससे कन्फ्यूजन बढ़ती है। इससे जो है एंटी पाकिस्तान जो पार्टियां हैं, जो ग्रोह हैं, उनको आवाम को कंफ्यूज करने में बहुत आसानी होती है, और वो अच्छे खासे जो पैदावारी मंसूबे हैं जो पाकिस्तान की बुनियाद बन सकते हैं, रियासत की आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतरी का मौजब हो सकते हैं, उनको जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो इस पर इन तमाम पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ये तमाम पार्टियां मिलकर इस मसलों का हल निकालेंगी और पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई रिलीफ मुहैया करने की कोशिश करेगी। ठीक, खुदा हाफ़िज़। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पर धमाका किया, फिर फायरिंग की। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है।